जो आपने अभी तक सीखा है ना उस पर ही डिपेंड करता है. सो जस्ट हैव ए माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना. इसलिए फाउंडेशन का फर्स्ट चैप्टर है, उसका फर्स्ट यूनिट है, राइट. आई विल बी कवरिंग दोस थिंग्स विच आर इन योर 11th एज वेल. तो आपको समझेगा कि आपको कितना आता है क्या नहीं आता है. ध्यान देना. Everyone knows this equation. Assets is equal to capital plus liability, right? Or you can say assets minus liabilities is equal to capital. Try to understand. This is your balance sheet. ये आपकी बैलेंस शीट होती है, हमें करना है बैलेंस शीट. दिस इज योर असेट साइड. तो यहाँ पे आपके टोटल असेट्स होते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड इज कैपिटल एंड लाइबिलिटीज. And this is the total of capital liability. Both are equal. So assets is equal to capital plus liability. Assets are equal to capital plus liability. This is accounting equation. ये हमने किया था बहुत इनिशियल में, accounting equation, right? Then आगे, then the rules are summarized as below. Increase in assets are debits, decreases are credits. Increase in asset is debit, decrease in asset is credit. So this is your asset account. This is your liability account. और this is your expense account और this is your income account. Rules कैसे ध्यान देना. Increase in asset debit, increase in asset debit, decrease in asset credit. जब भी कोई एसेट इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ सम ट्रांजैक्शन, अगर कोई एसेट इंक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, उस एसेट के इंक्रीज साइड पे लिखेंगे मतलब डेबिट साइड पे. अगर कोई एसेट डिक्रीज होगी तो उसको उसके डिक्रीज साइड पे लिखेंगे मतलब क्रेडिट साइड. सिमिलरली इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और क्रेडिट. अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम लाइबिलिटी अकाउंट के इंक्रीज साइड पे पोस्ट करेंगे मतलब क्रेडिट करेंगे. अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे. इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी ओनली. सो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिट. इंक्रीजेस इन एक्सपेंसेस आर डेबिट्स, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीजेस आर क्रेडिट. एंड लास्ट वाला देखो, increases in revenue or incomes are credits and decreases are debit. ये रूल्स पे ही हमने अभी तक अकाउंट्स नहीं सीखी. यही हमारे, इनको हम बोलते हैं मॉडर्न रूल्स, इनको हम बोलते हैं मॉडर्न रूल्स. एंड इनके बेसिस पे ही पूरे अभी तक हमने जो भी अकाउंटिंग है इन मॉडर्न रूल्स पे ही सीखी है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. The term debit and credit should not be taken to mean respectively favorable and unfavorable things. It is merely describe the two sides of the account. Debit मतलब favorable और credit मतलब unfavorable, ऐसे नहीं. Debit and credit मतलब the two sides of account. Debit, what do you mean by debit? अगर आपको कोई पूछेगा what do you mean by debit, तो your answer should be in case of assets, increase in asset and increase in expenses are debits, and in case of incomes and liabilities, decrease in incomes and liabilities are debits. What do you mean by credit? Credit for assets and expenses are decrease, and credits in respect of incomes and liabilities are increase. So they are merely the two sides of account. There is no specific meaning of debit and credit. They are the two sides of account. Then आगे, then journal, ध्यान देना. All transactions may be first recorded in the journal as and when they occur. As and they occur मतलब chronologically, date wise. Date wise. The record is chronological. Otherwise, it would be difficult to maintain the records in any orderly manner. तो जैसे जैसे transactions होंगे, वैसे वैसे हम उनको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. As and when they occur, as and when they take place.
So try to understand that is that day book is called as journal. उसको बोलते हैं journal. ठीक है? Then there are journal general and specialized journal. Specialized journal मतलब subsidiary books. Specialized journal मतलब subsidiary books. Purchase book, sales book, budget and book, sales return book, journal proper, ये सब specialized journals आ गए. This is the format that everybody knows. Date, particulars, LF. LF column entry करते टाइम नहीं fill किया जाता, posting करते टाइम LF column fill किया जाएगा. Debit rupees and credit rupees. आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है. Points to be taken into care while recording the transactions in the journal. ध्यान देना, ठीक है. कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए while you record the transaction in the journal. Journal entries can be single entry. Single entry मतलब one debit one credit, one debit and one credit, और compound entry. देखो एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में उसको कंबाइन एंट्री बोला है, बट एक्चुअली कंबाइन एंट्री वर्ड नहीं होता है, वो होता है कंपाउंड एंट्री. मैंने आपको बोला था, देखो इफ रिमेंबर, राइट, व्हेन देयर आर मोर देन, राइट, ये वाला कॉम्बिनेशन, वन डेबिट टू और मोर क्रेडिट. किसी एंट्री में एक डेबिट है और ज्यादा क्रेडिट है, और वन और मोर क्रेडिट, सॉरी, टू और मोर डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, और टू और मोर डेबिट्स एंड टू और मोर क्रेडिट, टू और मोर क्रेडिट्स. So one debit, two or more credit, two or more debit, one credit, and two or more debit and two or more credit. अगर ये कॉम्बिनेशन किसी एंट्री में है तो उस एंट्री को कंपाउंड एंट्री बोला जाता है. वन डेबिट एंड टू और मोर क्रेडिट्स, और टू और मोर डेबिट्स एंड वन क्रेडिट, और टू और मोर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स. जो ये तीन चीजें मैंने लिखी, आपके टेक्स्ट बुक में उसको कंबाइन एंट्री बोला है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट. एक्चुअल में उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं. मैं आपको जो भी सिखाऊंगा करेक्ट सिखाऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसको कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ना कि कंबाइन एंट्री. कंबाइन एंट्री मतलब जब दो एंट्रीज को कंबाइन करके एक ही एंट्री लिखी जाती है ना, उसको बोलते हैं कंबाइन एंट्री. कंपाउंड एंट्री, हम दो कंपाउंड एंट्रीज को भी कंबाइन कर सकते हैं. सो कंपाउंड एंट्री अलग होता है, कंबाइन एंट्री अलग होता है. बट आपके 11 के महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द कंपाउंड एंट्री. तो आप हमेशा कंबाइन एंट्री आंसर लिखते जाओ, बट एक्चुअली इट इज अ कंपाउंड एंट्री. देन in such cases it is important to check the total of debit and total of credit is equal. Debit and credit equal होना चाहिए, ठीक है. Then चलो we will solve this question everyone, ठीक है. I want answer from you. I want answer from you. ध्यान देना, this is question. आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, खाली ध्यान देना, right. Journalize the following transactions. Also state the nature of each account involved in the journal entry. I'm not interested in the nature of account. You have to tell me the entry. Ajit started business with capital of 4 lakhs. Ajit started business with a capital of 4 lakhs. Let me हाँ बोलो. अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 1 लाख. बोलो क्या एंट्री आएगी. आपको अमाउंट जाने दो, अमाउंट सिंपल है, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, खाली लिख टाइप करते चलो. अच्छा, डेबिट इज करेक्ट, कैश टू कैपिटल परफेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट पर करेक्ट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 4 lakhs perfect. Second, he withdrew cash from business. क्या लिखा है? He withdrew cash from business from bank. He withdrew cash for business from bank to 2000. क्या एंट्री आएगी? Withdrew cash for business from bank. एंट्री क्या आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. क्या एंट्री आती है? परफेक्ट. कैश डेबिट होगी बिकॉज कैश कम्स इन डेबिट, एंड बैंक को क्रेडिट होगा बिकॉज राइट बैंक बैलेंस कम होगा. सो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. क्या एंट्री आएगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट उनकी वही एंट्री रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. नेक्स्ट he purchased goods making payment through bank rupees 15,000. क्या एंट्री आएगी? यस आनस करेक्ट, यस भूमिका करेक्ट, गुड. परचेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. परफेक्ट. परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. परफेक्ट. he sold goods rupees 16,000 and received payment through bank. he sold goods and received payment through bank. बैंक में पैसे आ गए, एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. परफेक्ट. बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. गुड. he purchased furniture and paid by check 2,500. क्या एंट्री आएगी? purchase furniture and paid by check. yes correct देव, correct, it's correct. yes सेजल correct. रिया, अच्छा रिया I don't know. Parag correct. Anas, it's wrong. You have purchased furniture, you are not purchased goods. If you purchase the goods, then purchase account. If you purchase fixed asset, it is a fixed asset account. So entry is furniture account debit to bank account credit. Entry is furniture account debit to bank account credit. Furniture account debit to bank account credit. ठीक है, आगे. He sold goods to Arvind rupees 20,000. He sold goods to A. He sold goods to A 2,400. Entry आएगी. Yes, perfect. Parag. Yes, correct. Anas. He sold goods. सेजल, सेल्स का भी डेबिट नहीं होता. सेल्स इज इनकम, वो हमेशा क्रेडिट होगा. सेल्स इज इनकम, हमेशा क्रेडिट होगा. एंट्री आएगी ए अकाउंट, अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स. देव तू बोल रहा है सेल्स टू ए. नो, इनकम कभी भी डेबिट नहीं होगा, इनकम क्रेडिट ही होगा. सो सेल्स को क्रेडिट होगा. ए मेरा डेटर बन गया और डेटर को डेबिट करो. एंट्री आएगी ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट और अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अरविंद टू सेल्स, अरविंद टू सेल्स. नेक्स्ट. ओके गुड. He purchased goods from Amrit rupees 10,000. अमृत से गुड्स परचेस किए. परफेक्ट. पराग. यस देव, इट्स करेक्ट. यस श्रुतिका करेक्ट. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अमृत अकाउंट क्रेडिट. परफेक्ट. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अमृत. 8. He returned goods to अमृत 500. अमृत को गुड्स रिटर्न किए. ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी. एंट्री क्या आएगी? अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. परफेक्ट. अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. श्रुति का इट इज परचेसेस रिटर्न, नॉट जस्ट परचेसेस. परचेस रिटर्न यूज करना है, ठीक है. पीआर अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट. नेक्स्ट. ही रिसीव्ड रुपीज 2,300 फ्रॉम अमृत इन फुल सेटलमेंट. देखो, he received 2,300 from अरविंद. सॉरी, अरविंद से 2,300. अरविंद को कितने का सेल किया था? 2,400 का सेल किया था. सो अरविंद को सेल किया था 2,400 का. वी रिसीव्ड. अब एंट्री आएगी कैश कम्स इन डेबिट 2,300. हमने उसको डिस्काउंट दिया. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट वाला डेबिट होगा 100 टू अरविंद अकाउंट क्रेडिट 2,400 टू अरविंद अकाउंट क्रेडिट 2,400. बराबर है. आगे अरविंद अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, अरविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अरविंद अकाउंट. नेक्स्ट. गुड. ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज. बोलो क्या एंट्री आएगी? विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज. यस, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज. बोलो. Drawings account debit to purchases. Perfect. Drawings account debit to purchase. Then he withdrew cash from business for personal use 2,000. Withdrew cash from business for personal use 2,000. क्या एंट्री आएगी? Drawings account debit to cash account credit. Perfect. Drawings account debit to cash. Perfect. Goods निकालेगा तो to purchase, cash गई तो to cash.
he paid telephone charges 110. बोलो, he paid telephone charges 110. he paid telephone charges 110. yes, telephone charges to cash, telephone charges to cash. 13, amount paid to Amrit in full settlement 9450. अमृत को आप देख सकते हो, हमने 10,000 के परचेस किए थे और फिर हमने 500 के रिटर्न किए, तो 10,000 माइनस 500, हमें अमृत को 9,500 पे करने हैं, उसमें से हमने खाली 9450 पेड किए इन फुल सेटलमेंट। तो एंट्री आएगी अमृत अकाउंट डेबिट, उसको पे हो रहा है, अमृत अब डेट क्रेडिटर नहीं रहेगा 9,500 टू कैश, हमने खाली 9450 ही पेड किया इन सेटलमेंट ऑफ 9,500, हमारा फायदा हो गया 50 रुपए का, हमने कम पेड किया, वी रिसीव डिस्काउंट रिसीव गेन अकाउंट क्रेडिट। यस परफेक्ट, अमृत अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, परफेक्ट सेजल, गुड सेजल। देन पेड स्टेशनरी 200, रेंट पेड 5,000, सैलरीज टू स्टाफ 2,000, एक ही एंट्री डालेंगे, स्टेशनरी डेबिट 200, रेंट डेबिट 5,000, सैलरीज डेबिट 2,000, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 7,200, स्टेशनरी डेबिट परफेक्ट आनस, रेंट डेबिट परफेक्ट, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल 2,000, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल 2,000, बोलो क्या एंट्री आएगी? यस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। इट इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? नहीं सेजल, तूने कैश नहीं दी, तूने गुड्स दिए, गुड्स, यू आर गिवन गुड्स। अगर तू कैश देगी तो कैश क्रेडिट होगा, तूने गुड्स दिए तो परचेसेस क्रेडिट होगा, एंट्री आएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, यू आर गिवन गुड्स, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट टू परचेसेस, परफेक्ट। लेट मी अनम्यूट एवरीवन, मैं एक एक को अनम्यूट करता हूं एंड हर कोई बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट मी अनम्यूट एवरीवन, जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। मैंने सबको किया है, जितने भी हैं मैंने सबको अनम्यूट किया है, आप साथ में बोले तो भी फर्क नहीं पड़ता, राइट? अनम्यूट करके रखो एवरीवन वहां पे अपने अपनी इधर। हाँ, बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? बिल्डिंग Asset. बराबर, असेट, गुड। परचेसेस expense, परफेक्ट, सेल्स Income. सेल्स, इनकम Income. हाँ परफेक्ट। बैंक एफडी asset, Asset. असेट, परफेक्ट। रेंट Expense. एक्सपेंस। रेंट विद डेबिट बैलेंस, रेंट विद डेबिट बैलेंस कौन सा अकाउंट? लायबिलिटी, लायबिलिटी को डेबिट बैलेंस होता है कभी? Prepaid rent, I guess. नहीं, अगर प्रीपेड रेंट होगा ना मैडम, आई विल से प्रीपेड रेंट अकाउंट। asset, नो, रेंट विद डेबिट बैलेंस इज एक्सपेंस, रेंट विद बैलेंस इज इनकम। रेंट रिसिप्ट रहेगा ना, Oh, देखो अगर प्रीपेड रेंट रहेगा ना तो दे विल स्पेसिफिकली से यू प्रीपेड रेंट अकाउंट, वो कभी रेंट अकाउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रीपेड रेंट prepaid rent. डेबिट बैलेंस। अगर रेंट पेएबल रहेगा तो दे विल से आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, स्पेसिफिकली लिखेंगे, नाम खाली रेंट नहीं रहता, उसके आगे कुछ तो लिखा होगा, दिस इज अ पेड बैलेंस लायबिलिटी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ रेंट, खाली रेंट है और उसको डेबिट बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में रेंट डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस में रेंट डेबिट साइड पे, मतलब वो रेंट पेड होगा एक्सपेंस। अगर वही ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे रहेगा तो रेंट रिसीव्ड रहेगा इनकम, ठीक है, समझा? हाँ, अब ये देखो आगे लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, ये क्या रहेगा? Credit balance. क्रेडिट बैलेंस, यस, बट Liability. liability, परफेक्ट, कैश, Asset. asset, asset, perfect.
purchases. So first time सुना ना adjusted purchases. Yes. Yes. Adjusted purchases मतलब वो purchases जिसमें से closing stock minus हुआ होता है. It is expense only, don't worry. ये expense ही है, ठीक है? आगे closing inventory, closing stock क्या रहता है? Stock क्या रहता है? Asset. Purchase expense and stock होता है asset. ठीक है? आगे investment. Asset. Perfect. Trade receivables. Income. Asset. Trade receivables मतलब क्या पता है? Debtors. Try to understand Asset. today. Debtors को debtors नहीं बोला जाता. Debtors को अगर आज के अकाउंट you will find trade receivables. Debtors को क्या बोला जाता है? Debtors को बोला जाता है trade receivables and creditors को बोला जाता है trade payables. क्या बोला जाता है? Trade payables. ट्रेड की वजह से जो रिसीव ट्रेड मतलब परचेज की वजह से जो रिसीवेबल्स बने हैं डेटर्स डेटर्स असेट सेल्स टैक्स पेएबल पेएबल क्या रहती है Liability. परफेक्ट सेल्स टैक्स पेएबल इज अ लायबिलिटी अलाउड क्या रहेगा मैडम इनकम अलाउड इज इनकम Plus अलाउड इज इनकम और रिसीव्ड इज इनकम expense. हाँ एक्सपेंस अलाउड इज एक्सपेंस बैड डेट्स क्या रहेगा Expense. अच्छा Loss. Loss. लायबिलिटी Liability. लायबिलिटी परफेक्ट गुड अब हम नहीं बोल सकते कि ड्राइंग सर असेट है या लायबिलिटी है मैं जनरली उसको क्या बोलता हूँ सर ड्राइंग्स आई विल डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल एट द Capital. ड्राइंग्स कहाँ से माइनस होता है कैपिटल से माइनस होता है एट द एंड ऑफ द ईयर परफेक्ट को एक्सपेंस कह सकते हैं. नहीं एक्सपेंस नहीं एक्सपेंस देखो एक्सपेंस नहीं है ये लायबिलिटी डेफिनेटली एक्सपेंस नहीं है डेफिनेटली नहीं है ठीक है इट इज रिडक्शन फ्रॉम द लायबिलिटी इंटर रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल है Asset. Asset. yes debit balance any receivable is asset perfect rent received in advance anything received advance क्या होता है Liability. Liability. perfect it is a liability कौन सा बैलेंस रहेगा इसका डेबिट या क्रेडिट कौन सा लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस रहेगा लायबिलिटी का क्रेडिट. क्रेडिट देखो प्रीपेड सैलरी अकाउंट क्या रहेगा Asset. एसेट प्रीपेड सैलरी इज एसेट कौन सा Asset. रहेगा इसका कौन सा रहेगा प्रीपेड सैलरी का डेबिट. Debit. परफेक्ट एक्सपेंस एसेट है तो क्या रहेगा डेबिट बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट रिकवर्ड मतलब पहले बैड डेट्स आज जो रिकवर हुआ है इनकम. इनकम परफेक्ट बैड डेट्स रिकवर्ड बैलेंस कौन सा रहेगा इसका क्रेडिट. क्रेडिट डेप्रिसिएशन अकाउंट पता है नहीं. Debit. देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है सपोज आपने Asset. I think. नहीं एसेट नहीं मैम आपने बाइक ले ली 60,000 में तो समझेगा एग्जांपल आपने बाइक ले ली 60,000 में 4-5 सालों के बाद इसकी वैल्यू 60,000 होगी या 60,000 से ज्यादा होगी या कम सपोज होगी. 40,000 हो गई बराबर एग्जांपल 40,000 हुआ है ना कितने से एसेट की वैल्यू कम हो गई मैडम 20,000 इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन लॉस डेप्रिसिएशन इज लॉस डिक्रीज Loss. इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ये क्यों कम हुआ है पता है कोई बोलेगा सर क्यों कम हुआ है 20,000 कोई बोलेगा सबके पास अपने घर में बाइक है सबके पास मोबाइल 1-2 सालों के बाद या जैसे हम कुछ सालों के बाद उनकी वैल्यू कम होती है क्यों क्योंकि वो यूज होते जाता है. परफेक्ट देव इज करेक्ट सर वो यूज होते जाता है दूसरा और क्या रीजन है खाली यूज की वजह से क्या बेटर जैसे वर्जन वो- आते हैं फिर क्या हाँ, कोई उसका एक्सपेंस भी बहुत होता है बाद में यूज करने के expense बाद होता है मैं ऐसे बोल सकता हूँ उससे बेटर मॉडल मार्केट में आया होता है अभी बेटर वर्जन आते हैं हाँ बेटर वर्जन्स भी आते हैं बराबर ना टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो जो पुराना हो गया उसकी वैल्यू कम होती है ना जो वैल्यू कम होती है ना उस कंसेप्ट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन जो वैल्यू कम होती है ना तो जब वैल्यू कम होती है ना उसको बोलते हैं आर यू गेटिंग माय पॉइंट दैट इज डेप्रिसिएशन so depreciation is loss
डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका, एक्सपेंस। ठीक है, आगे पर्सनल इनकम टैक्स क्या रहेगा, पर्सनल इज ड्रॉइंग्स, Drawing. ड्रॉइंग्स, कैपिटल से क्या होगा, माइनस होगा, कैपिटल से क्या होगा, माइनस। अच्छा चलो बोलो, फर्स्ट एंट्री, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बोलो। Cash account debit. Cash Cash to account capital debit to account. capital. Perfect. Cash account debit to capital, perfect. Bought goods for cash, purchase to cash, Purchases cash. Account debit to cash. yeah, purchase to cash, perfect. Due cash from bank, cash to bank. Cash out Cash to bank. to bank. हाँ, entry contra entry है क्या, Yes, हाँ. sir. perfect. Sold goods to Krishna, Krishna to Krishna sales. Krishna account debit to sales. sales. Credit. Krishna to sales, perfect. Bought goods from Sham on credit, Purchase to Sham. Purchase account debit to Sham. perfect. Purchases to Sham, perfect, good. Received from Krishna 1 lakh, discount allowed 5,000. हाँ बोलो बोलो, बोलते रहो, कोई फर्क नहीं। Cash, cash account debit, Cash. discount allowed account debit to Krishna. बराबर है क्या एंट्री, यस और नो? कैश अकाउंट डेबिट 1,45,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 5,000 टू कृष्णा अकाउंट क्रेडिट 1,00,000, बराबर है क्या एंट्री? अरे एंट्री करेक्ट है क्या? No, Krishna will be debit. क्यों? Tejas, you receive money ना? When you receive money, डेबिट क्या होगा, कैश ना? When you receive cash, कैश होगी तो कृष्णा क्रेडिट ही होगा। Are you getting my point or no? तेजल, Yes. when you receive cash तो कैश को डेबिट करेगी, तो मतलब कृष्णा को क्रेडिट ही करना होगा, समझा या नहीं समझा बीबी? Yes. हाँ, अच्छा, पेड श्याम कैश 10,000, Sham account. सॉरी Shyam. पेड 15, डिस्काउंट अलाउड 10,000, यस। Sham Sham account account debit to debit. discount allowed Discount allowed debit to to cash. नहीं. डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। Sham Credit. to cash to discount receipt. हाँ, श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम डेबिट टू कैश ना, और अगर कैश तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, वो डिस्काउंट रिसीव होगा, Received. only. उसने हमें डिस्काउंट दिया है, हमने उसको नहीं दिया है, समझा? तो अगर कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उल्टा कभी नहीं होगा। सो एंट्री आएगी, श्याम अकाउंट डेबिट तो कितना, 2,25,000, कितना 2,25,000 टू कैश 2,15,000 टू डिस्काउंट 10,000, ठीक है? Yes, sir. कैश सेल्स फॉर द मंथ 8 लाख का कैश सेल हो गया, क्या एंट्री आएगी? Cash to sales. Cash account debit Cash to account. sales. Account debit to sales, perfect. Cash account debit to sales. Rent paid and salary paid, क्या एंट्री आएगी? Rent account Rent debit, salary account account debit, debit salary to Salary cash. account to cash. Perfect. Rent account debit 50,000, salary account debit 1 lakh to cash 1,50,000, बराबर? Then this is my first question. आपके सामने multiple questions है, right? ध्यान देना. The rent paid to landlord is credited to your Rents account. Cash account. the rent paid to landlord is Cash. credited to cash. 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 Entry क्या थी? Rent account debit to Rent to cash. 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 Yes. Rent account debit to cash. तो cash perfect. इसलिए cash को क्रेडिट होगा. In case of death becoming bad, अगर debtors bad debts हो जाते हैं, the amount should be credited to. क्या एंट्री आती है? bad debts की एंट्री क्या आती है? Cash नहीं. bad debts की एंट्री कैश कैसे आएगी bad debts में? Bad debts to जो भी trade debtor- receivable account. हाँ, मतलब debtors account एंट्री क्या है? bad debts account Rents account. to debtors account credit, बराबर ना? तो डेबिट करेगा बैड डेट्स को, क्रेडिट करेगा डेटर्स को, तो व्हाट इज आंसर? ABCD. डेटर्स मतलब A. रिसीवेबल्स. क्या आंसर रहेगा? ए ना? A. आगे A Limited has 35,000 on account receivable from मोहन. उनसे कितना रिसीव कर रहे हैं हमें? 35,000, बराबर ना? कौन हमारा डेटर या क्रेडिटर है, बोलो? मोहन कौन है हमारा? Debtor. यस, मोहन इज आर डेटर, बराबर ना? सो मोहन हमारा डेटर है, गुड. हमें उससे कितना रिसीव करना है?
30. 35. अच्छा, on 1,000. 20th January, मोहन makes a partial payment of 21,000. 35,000 में से उसने कितना पेड? 21,000. बराबर ना? अभी भी उससे कितना रिसीव करना बाकी है? 14,000. तो अभी भी हमारा वो डेटर कितने का है? 14,000. बराबर. द जर्नल एंट्री ऑन 20th क्या होगी? एंट्री जर्नल एंट्री क्या होगी? एक क्रेडिट टू कैश रिसीव्ड अकाउंट 21,000, एक क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 21,000, डेबिट टू कैश अकाउंट 14,000. एबीसी में से आंसर क्या करेक्ट लगता है आपको? एबीसी में से यस, एबीसी में से क्या करेक्ट लगता है आपको? यस, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स, रिसीवेबल मतलब डेटर्स. हाँ बोलो, एंट्री क्या रहेगी? व्हेन यू रिसीव 21,000 फ्रॉम द मोहन, एंट्री क्या आएगी? बोलो. कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट. हाँ, कैश अकाउंट डेबिट Mohana. तो मोहन मतलब डेटर ना, Yes. तो डेबिट होगा कैश को, क्रेडिट किसको होगा? मोहन. मोहन मतलब Mohan. अकाउंट रिसीवेबल चल जाएगा डेटर अकाउंट, तो एंट्री आएगी क्रेडिट टू अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट 21,000. 7,000. हाँ, आगे. विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस, कौन सा इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और बैलेंस शीट, ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, ये कौन सा तीनों में से क्या दिखाता है? Balance sheet. यस, परफेक्ट भूमिका, इट्स करेक्ट. बैलेंस शीट शोज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, Land. ठीक है. देन विच अकाउंट इज ऑड वन आउट, बोलो कौन सा ऑड वन आउट है? ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, प्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स. थोड़ा दिमाग यूज करना है. अच्छा, ऑफिस फर्नीचर कौन सी टाइप का अकाउंट है? Asset. Asset. फिक्स असेट, राइट ना? Yes. अच्छा, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा अकाउंट होता है? Asset. Fixed Asset. asset. नहीं, फिक्स असेट. उसमें भी कौन सा? असेट दो टाइप्स ना, असेट दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फिक्स असेट एंड दूसरे होते हैं करंट. Current. Current. अच्छा, करंट मतलब जो हमेशा चेंज होते हैं, बराबर ना? Yes. ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट फिक्स असेट है, एंड इन्वेंट्री क्या रहता है? current, Current assets. कैश, बैंक बैलेंस, डेटर्स, इन्वेंट्री, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो डेली बेसिस पे चेंज होते हैं ना, वो होते हैं करंट असेट्स. तो इनमें से तीनों में से ऑड वन आउट कौन सा बन गया? एबी. Inventory of C. material. Inventory of materials. हाँ, the bad debts return, the debts written off as bad if recovered subsequently. जब bad debts recover होता है तो एंट्री क्या आती? कोई बोलेगा जब bad debts recover होगा एंट्री क्या आएगी? Cash to bad debts recover account. कैश अकाउंट डेबिट टू bad Bad debt. अकाउंट. क्या? सपोज किसी ने आपको पैसे दिए नहीं, सपोज आज मैंने आपको पैसे दिए नहीं, तो आपके बुक्स में एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट क्रेडिट. आपके बुक्स में एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट, बराबर. और 2 महीनों के बाद मैं आपको आके पैसे देता हूँ, बोलता हूँ ये ले लो बैड डेट्स हुआ, ये पैसे ले लो, तब आप एंट्री डालोगे, आपको पैसे मिले, आप एंट्री डालोगे कैश अकाउंट डेबिट, आप एंट्री डालोगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रसाद अकाउंट नहीं डालोगे, आप डालोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. क्या एंट्री डालोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. क्लियर है? Yes, sir. तो एंट्री देखो, क्रेडिटेड टू बैड, पहला ही आंसर है, क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. ठीक है. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स, टू साइड्स ऑफ द सेम अकाउंट. मतलब वही अकाउंट डेबिट वही अकाउंट क्रेडिट, ऐसी एंट्री होती है क्या? कैश डेबिट कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट, राम डेबिट एंट्री कभी नहीं होती. द सेम अकाउंट ऑन टू डिफरेंट डेट्स. क्या लगता है आपको में एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एबीसी टू B. Two accounts. इसलिए Two accounts. बोला जाता है डबल एंट्री. समझा? डबल एस्पेक्ट, टू एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट. ड्यूअल एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट रहते हैं एवरी ट्रांजैक्शन. एक रहता है डेबिट, दूसरा रहता है क्रेडिट. अच्छा, 8 देखो, 8 ए सेल ऑफ गुड्स टू राम, ए सेल ऑफ गुड्स टू राम
for cash should be debited to which account? Cash account. Yes, cash account debit to sales. Entry आएगी cash. Next. Let me check. आप मुझे ये बोल सकते हो इसमें मिसिंग फिगर क्या है? Assets are 15 lakhs, liabilities are 2,50,000. What is capital? 12,50,000. कैसे निकाला रिया? लाइबिलिटी असेट को लाइबिलिटीज में से माइनस किया. Asset को liabilities से किया, liabilities को assets से किया. Which is higher? असेट को माइनस किया लाइबिलिटीज से. अच्छा ठीक है, एक्चुअली उल्टा बोलना चाहिए, लाइबिलिटीज को असेट से माइनस किया. सो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता. आंसर क्या है? व्हाट इज द कैपिटल? यहाँ पे असेट्स 15 lakhs माइनस लाइबिलिटीज हाउ मच? 2,50,000. तुम्हारे कैपिटल कितना आ गया? 12,50,000. बराबर है ना? Yes. अच्छा, यहाँ कितने होंगे बोलो? 2,25,000. 2,25,000. बराबर. लाइबिलिटीज आर 1,50,000, लाइबिलिटीज आर 1,50,000 एंड कैपिटल 75,000. टोटल कितना बन जाएगा? 2,25,000. सी देखो, assets are 14,50,000, capital 13,75,000. तो liabilities कितना रहेगा? 95,000. सोचो. 75,000. परफेक्ट. कैसे? 14,50,000 minus 13,75,000 is 75,000. डी में बोलो कितना का? अच्छा, liabilities नेगेटिव है. liabilities आर नेगेटिव. सर हो सकता है कि लाइबिलिटीज नेगेटिव, कभी-कभी हो सकता है. नेगेटिव है तो कितना रहेगा बोलो? Asset is equal to capital plus liabilities. Assets are 57 lakhs. Capital is question mark. Liabilities is तो नेगेटिव उस साइड पे जाने पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना? Capital is equal to 57 lakhs plus 2,80,000. कितना आ जाएगा रे? 59 lakhs 80,000. कितना आ जाएगा? 59 lakhs 80,000. 80,000. Let me check. 15 lakhs 80,000 दिखा? 15 lakhs 80,000. आगे. Then ठीक है. ओके. अच्छा मुझे बोलो, मॉर्निंग में चल जाएगा रे तुम लोगों को? Yes, sir. मॉर्निंग 8 to 10. कितने बजे? 8 to 10. Yes, sir. 10:30. उसका कॉलेज होता है तभी. कौन सा? 10 तो. मेरा 11:30 को हमारा रहता है. रिया तू मेरा सच्ची भी में 11:30. रिया तू जाती है सच्ची में कॉलेज? यस सर. दस्तूर कितने बजे स्टार्ट होता है? सर अभी तो कॉलेज है तो 9 बजे होता है. अभी एग्जाम्स चालू है तो 9 बजे होता है या 11 बजे होता है. एग्जाम फिर खत्म अगर- होने के बाद 11 बजे स्टार्ट होगा ना? नो सर, उसके बाद तो 8 बजे चालू हो रहा है. कंफर्म करके रखना, मुझे बोल देना क्या है. ठीक है. यस सर. अच्छा, एनीथिंग एल्स? तो मैं आई विल अपडेट द टाइम. मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मॉर्निंग रहेगा. अगर इवनिंग में रख सकते हैं 3 घंटे. मैं बोलता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस तो मॉर्निंग रहेगा. देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है. ठीक है. बट अब Yes, sir. जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो फेस टू फेस रहेगा. जिनको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं. बोथ ऑप्शंस विल बी अवेलेबल. रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, वो भी इशू नहीं है. ठीक है. बट अब मैं नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ ना, तो वो मैं लेक्चर में मैं अपडेट मैं दोनों ले लूंगा. सच्ची में पॉसिबल है तो ऑफलाइन करो, अगर नहीं पॉसिबल है तो ही. ठीक है. क्लियर है? Yes, अच्छा ठीक है. आज हम यहाँ पे रुकते हैं. तो नेक्स्ट मेरा ऑफलाइन रहेगा. इसी वीक में 1-2 दिन में हम स्टार्ट कर रहे हैं. परसों से ही पकड़ के चलो. ठीक है. तो जो भी लेक्चर रहेगा ऑफलाइन रहेगा एंड आई विल कम्युनिकेट द टाइम. सो आई विल टॉक विद एवरीवन एंड अकॉर्डिंगली वी विल कम विद राइट कॉमन टाइम. ठीक है. चलो आज हम यहाँ पे रुकते Yes, हैं. sir. थैंक यू.